Hello students, today again we are here with your worksheet number 17, which is again from your chapter 12 electricity. It's about potential difference and electric circuit. So let's read it out. What do you mean by potential difference? As the name indicates, it is about some difference. Difference. Difference of what? Potential. कुछ अंतर है। अंतर किसके बारे में बता रहा है? वो विभवों के अंतर में बता रहा है। इसको हम हिंदी में विभवांतर कहते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. Last time I also told you that if there is a wire, suppose this is point A and this is point B, then from point A to B, if some work is being done to carry a charge, मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज चल रहा है, तो एक ये तार का टुकड़ा है, उसमें एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है. तो हमने क्या माना कि इस ए से बी तक जाने के लिए किसी आवेश को, एक कूलम आवेश को कुछ कार्य करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका विभवांतर कहलाएगा. तो ये जो ए और बी के बीच में जो चार्जेस बने, आवेश बना, इधर से उधर तक आया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आया, तो वो क्या होगा, उसका विभवांतर कहलाया जाएगा. क्या कहलाया जाएगा विभवांतर? उसके द्वारा जो किया गया काम है. एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आने में जितना काम करना पड़ेगा या कार्य करना पड़ेगा, वो उसके विभवांतर के बराबर होगा. तो हमें यहाँ पर बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारी जो वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर है, W अपॉन Q. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हियर W upon Q. Okay, the work done, this is work done. Okay, and this is charge. Work done is been calculated in joules. इनको जूल्स में कैलकुलेट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल J. एंड चार्ज इज कैलकुलेटेड, इट्स SI यूनिट इज कूलम and it is represented by capital C. So हम यहाँ आराम से कह सकते हैं कि work done by a charge, a unit charge you can say, from moving one point to another is called as potential difference. This is volt, SI unit of potential difference. Okay, now अब अगर मान लीजिए हमें इसे 1 बनाना है, इसको क्या बनाना है, 1 वोल्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 वोल्ट 1 ही होना चाहिए आपका वर्क डन, और 1 ही क्या होना चाहिए, आपका चार्ज. तो हम कह सकते हैं क्या, अगर हमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकालनी है तो हम इसके आसानी से निकाल सकते हैं. व्हेन द वर्क, मतलब यू कैन से वर्क डन बाय, वर्क डन कितना, 1 जूल ऑफ वर्क, 1 joule of work done by 1 coulomb charge from one point to another in any conductor is called as potential difference 1 volt. Okay, is called as potential difference. वो क्या है, 1 volt. तब क्या होगा, potential difference 1 volt होगा. जब एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, तो उसके द्वारा कितना कार्य किया गया है वो 1 जूल है. ठीक है, और वो 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा. तो ये उसकी डेफिनेशन है, दैट इज वर्क डन बाय 1 जूल, सॉरी वर्क डन, दैट इज 1 जूल ऑफ वर्क being done by 1 coulomb charge in moving from one point to another point in any conductor is called as 1 volt. तो बेटा it is very important. Okay, here it is, SI unit of electric potential is 1 volt. 1 volt is potential difference between the points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. We can write it like this also.
1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb, like this. Okay, so this is the name volt. How it was taken? It was against your another scientist, Alessandro वोल्टा, एक इटालियन फिजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जिनके नाम के पीछे वोल्ट लगता था, तो इसीलिए उनके नाम पर हमने वोल्ट लग दिया है पोटेंशियल डिफरेंस का नाम. ठीक है, तो नेम वॉज टेकन आफ्टर हिज मेमोरी. ओके, सो another is like potential difference is measured by means of an instrument called as voltmeter. Its voltmeter, in previous worksheet we learned that how to measure electric current, that was through ammeter. It was represented by A, but now it is represented by V. It is voltmeter. The voltmeter is always connected in parallel across the points in between which the potential difference is to be maintained. Now we'll ask what is parallel. Look at the electrical circuit here, like this is the battery or cell it is here, and it is the key, it is closed one, and there is a bulb, and there is a resistance. Okay, now what about the parallel one? If we arrange another resistance in this way, this is called as parallel way. Okay, this way is parallel. Okay, and if we arrange another way, if we arrange it in another way, like in the course, like here or there, it is called as in series. Okay, this is the series pattern, blue one, and in the green one it's parallel pattern. We'll discuss it later on when you all another worksheet will come, I guess. On the very next in the very next worksheet there will be about your arrangement in series and in parallel. Okay, then we'll discuss it there on. Now we'll discuss the voltmeter is always connected in parallel, but the ammeter was always connected in series. You have to remember the difference between the both. Across the points between the potential differences to be measured. Very simple it is. Now electric circuit is there. The continuous and closed path of electric current is called as electric current. Continuous means कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए, close means बंद होना चाहिए. If the circuit is open or broken anywhere, कहीं से टूटा है और खुला है, the current would stop flowing. वो करंट बहना बंद कर देगा. वो चीज़ जो हमने कोई असेंबली लगाई हुई है बल्ब के रूप में, तो वो नहीं जलेगी. एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, फॉर एग्जांपल आप सिंपल सी बात सोचिए कि अगर मान लीजिए आपकी जो बल्ब तक जा रही है तार, वो बीच में से टूटी हुई है, ठीक है, या फिर आपने स्विच बंद किया हुआ, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि आपने उसका एक पार्ट को हमने तोड़ा हुआ है या फिर उसको बंद किया हुआ है. ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेज अ सेल या और बैटरी, अ प्लग की, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग वायर. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आ जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. ये आपकी 7th 8th क्लास में भी थे कि एक सेल या बैटरी लगी होती है, एमीमीटर या वोल्टमीटर लगा होगा, की होगी, की दैट कंट्रोल्स द ऑन एंड स्विच ऑफ बटन, लाइक एक बल्ब होगा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के रूप में. ठीक है, and this is the all your electric circuit. Now we will discuss about the symbols. The conventional symbols जो हम यूज़ करते हैं to represent some of the most commonly used electrical components, यानी कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए हम डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स वी यूज सिंपली अ वायर लाइक दिस और लाइक दिस, resistor like this as I drawn earlier. I'll draw it here like this one. This is resistance, your resistor. Cell,
सेल इज देन, जब एक ही सेल लगाते, देखते हैं आप कभी कभी किसी टॉय में एक ही सेल लगता है और किसी किसी में बहुत सारे सेल्स लग जाते हैं। जब एक से ज़्यादा सेल लगता है देन इट इज़ कॉल्ड एज बैटरी। एंड वन जब एक ही सेल लगता है दैट इज़ कॉल्ड एज सेल ओनली। जैसे यहाँ पर एक ही सेल के बारे में पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल दिखाए हुए हैं उसके, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या है, बैटरी। बैटरी मैंने बताया एक से ज़्यादा सेल लगे होते हैं, तो यहाँ इसका ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल व्हेन टू सेल्स आर देयर, ओके, टू और मोर, ओके। And this is plug or key. Now look at it here carefully. I'll draw it here. Sorry, this is like this. This is one is drawn like this and one is drawn like this. This is your what? This is your closed key, and this is your open key. You will ask what is open and what is closed. Closed is the state जब आपने स्विच को किसी ऑन किया हुआ है और बल्ब जल रहा है, दैट इज़ योर क्लोज्ड सर्किट स्टेट। वो तब है जब क्या है, बल्ब जल रहा है, ओके। तो आपने स्विच ऑन किया हुआ है तो वो अंदर जाके क्या कर देता है, सर्किट को पूरा कर देता है, तो इट इज़ क्लोज्ड सर्किट, ओके। एंड ओपन सर्किट इज़ दैट वन जब आपने स्विच ऑफ किया हुआ है, बल्ब नहीं जल पाता, बिकॉज आपने जब स्विच ऑफ कर देते हो तो वो सर्किट खुल जाता है, तार टूट जाती है या उसके साथ नहीं जुड़ पाती है, जिसकी वजह से बल्ब पीछे नहीं जुड़ पाता। दिस इज ओपन सर्किट केस, ओके। नाउ अनदर सिंबल्स आर लाइक बल्ब। बल्ब इज़ वेरी सिंपल टू ड्रॉ। एमीमीटर एंड वोल्टीमीटर, ये करंट की जो करंट को हम मेज़र करते थे इससे वीएस में, एंड वोल्टीमीटर्स के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं वोल्टीमीटर से, वोल्टमीटर से। लुक एट केयरफुली, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर वी लिखा हुआ है, तो ये पहचान है एमीमीटर और वोल्टीमीटर की। तो वोल्टमीटर एंड एमीमीटर में डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी कि ये करंट और ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस वन इज़ कनेक्टेड इन parallel way, okay, in the electrical circuit obviously, okay. So what about now the question answers? What is meant by saying that the potential difference between the 2 points is 1 volt? Very simple it is. 1 volt is the potential difference. उससे बेसिकली आपसे 1 volt की डेफिनेशन पूछी है। 1 volt is the potential difference between the 2 points in the current carrying conductor when 1 joule of work is being done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point. तो बेटा this was being discussed by me earlier in earlier slides, so I won't be discussing it here again. So this is the answer of question number 1. Now moving to our question number 2. Write the symbols of given components like battery, cell, resistor and closed key, okay. So here's the answer of second question. look बेटा, यहाँ पर आपके पास सारे दिए हुए हैं, रजिस्टर भी, सेल भी, बैटरी भी और इनके कंपोनेंट्स के डिफरेंट सिंबल्स भी। अब लेकिन आप ध्यान देंगे तो नीचे वाला बनाएंगे, बिकॉज ये in the question it is being only asked about the closed key not open key, तो उसमें ओपन की नहीं बनाएंगे, क्लोज की बनाएंगे, तो ये ध्यान से करेंगे यहाँ पर। फिर इससे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज़ द नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। द सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र हम करते हैं वोल्टमीटर से, सो it would be the instrument that is used to measure the potential difference between the 2 points across any conductor, okay. Now last question is what is differentiate between open and closed circuit. That is again very simple, and this is your question number 4 answer. Like closed circuit is meant to be a circuit activated by switch that closes a circuit loop and allows current to flow. What happens जब एक बटन बंद हो जाता है, मैंने आपको बताया, तो वो क्या करता है, एक सर्किट को बंद कर देता है और करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर देगा,
ठीक है। तो जिसकी वजह से जो बल्ब होगा वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। ओपन सर्किट की एक ऐसी कंडीशन है जब इलेक्ट्रिकल टर्मिनल इज नॉट कनेक्टेड टू एनी पार्ट। हो सकता है कि उसका की बंद हो सकता है कि बल्ब ही सही जगह ना लगा हो सकता है सेल उल्टा हो। अब आपके मान लिए कोई मान लीजिए कोई टॉय है उसमें आपने सेल लगाए वो फिर भी नहीं चल रहा, तो हो सकता है आपने सेल गलत लगाए हो सकता है उसमें कोई और पावर का बटन हो सकता है उसकी कोई तार खराब हो गई हो। इन एनी वे उसका कोई सर्किट पूरा नहीं है, दैट इज़ योर केस ऑफ ओपन सर्किट। उस पॉइंट में वो नहीं चलेगा। ओके, दैट इज़ योर केस ऑफ योर ओपन circuit. So again we are here with another diagram, like this is your closed circuit, bulb is glowing, and this is an incomplete electric circuit, so bulb is not flowing because the electricity cannot flow in that circuit when it is open. Okay, so beta, this was your worksheet number 17. When our next worksheet will come, we will discuss. Till then, stay safe and stay happy. Thank you.